Hello everyone, welcome all of you came at that point. Today I will discuss class 12 chapter 4 chemical kinetics. So dear student, it is a DPP 1 in chemical kinetics. So it is MCQ based question, but it will be also numerical types, right? So today what I will do, so that question will be clearly solving methods, right? I will discuss how to solve the questions. Okay, let's start. So let's start. Question number one. Thermodynamic tell us only about dash of the reaction and dash tell us about the rate of reaction. Dear student, thermodynamics is tell us only about the spontaneity of the reactions, that means feasibility, okay, of the reactions, and dash tell us about the rate of reaction. Dash tell us the rate of reaction, that means chemical kinetics, right? Chemical kinetics is it tell us the rate of reaction. The right answer is thermodynamics tell us only about the feasibility of the reaction, and chemical kinetics tell us about the rate of reactions. Done. First question is clear. Nice. Now move to the question number 2. What are the factor affecting the rate of reactions? Dear students, rate of reaction, which factor it will be affected, right? Number one, concentration. Number two, temperature. Number three, presence of catalyst. Number four, surface area. Of reactant. Okay, concentration, temperature, presence of catalyst, surface area of reactant. Understood? Okay, it is a factor affecting the rate of reactions. Do you understand my point? Any doubt? Okay. I just to share the one point of the these four uh, factors. Number one, concentration. Dear student, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. Number one point is clear. Now second factor, temperature. If increasing in temperature, the rate of reaction also increases. Okay, now come to the third bit, presence of catalyst. Okay, presence of catalyst. In presence of catalyst, rate of reaction it will be faster. Okay, and now come to the surface area of reactant. Smaller the surface area, greater the rate of reactions. Done. Now move to the question number 3. What are the two types of rate of reactions? Dear student, it is a two types of rate of reaction. Number one, average of rate of reaction. Number two,
instantaneous rate of reaction, right? Got it, my friend? One of the average rate of reaction, second one is instantaneous rate of reactions. Okay, what is the average rate of reaction? What is the average rate of reaction? Average rate of reaction means the rate of reaction measure over a long time interval. What is the instantaneous rate of reaction? The rate of change of concentration of any one of the reactant or product at a particular instant of time. Okay, done. Okay, so average rate of reaction means it is a long time interval, and instantaneous rate of reaction means it is a small change, right? In particular time, you also call the particular time, it is an instantaneous rate of reactions. Average means long time interval. Got it, my point? Now move to question number 4. How can we define the speed of rate of reaction? Answer. So you can write the speed or the rate of the reaction the speed or the rate of reaction can be defined as the change in concentration of a reactant or product. Okay, in unit time. Done. Okay, the speed or the rate of reaction can be defined
are the change in concentration of a reactant or product in unit time. Understood? Or you can say that another way, the rate of decrease in concentration any one of the reactant, the rate of increase in concentration of any one of the product. Okay, reactant rate it will be decreases, and in case of product it will be increases. Got it? Any confusion? Good. Now move to question number 5. Question number 5. Upon which factor the average rate depends, relating to this give the equation to find average rate. So answer, you can write the answer. Change in concentration of reactant, change in concentration of reactant or product and the time taken for that change to occur. Average rate equal to decrease in concentration of reactant divided by time taken equal to minus delta concentration R divided by delta T. Done? Or you can say that increase in concentration of product divided by time taken बराबर प्लस डेल्टा P divided by delta T. Okay, understood? Clear? Now move to question number 6. Denote the general unit of rate of reaction in both liquid and gaseous state. Dear student, question number 6 is a very important. It comes into CBSE exam. CBSE 2025. It is selected question, right? Please note down question number 6. Okay. For liquids, for liquids unit is mole liter inverse second inverse, right? For liquid, mole liter inverse second inverse. For gas, for gases, ATM atmospheric ATM सेकेंड इनवर्स. ओके, तो बेटा यहाँ पे दो चीज आया. फॉर लिक्विड के लिए मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, फॉर गैसेस के लिए एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सेकेंड इनवर्स. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है. लिक्विड के लिए क्या होगा, गैस के लिए क्या होगा. कर पाओगे? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. गुड. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Mention the equation for spontaneous rate of reaction. So dear student, right answer is a rate, that means smaller, instantaneous equal to minus
dr divided by dt. Getting my point? Yeah, you can say like that. Rate instantaneous equal to derivative of product divided by dt. Getting my point? ये आपका रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन आएगा और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन आएगा. इंस्टेंटेनियस इज स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, राइट? सो यू कैन write down the d. D means small change. Got in my point? Any confusion? I think no. Now question number 8. In a reaction 2A gives rise to product, the concentration of A decreases from 0.5 mole liter inverse to 0.4 mole liter inverse in 10 minutes. Okay. Calculate the rate during this interval. Is fine. तो हमको कंसेंट्रेशन दे दिया, ठीक है. तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, राइट? सो डियर स्टूडेंट, इन द केस ऑफ 2A गिव राइज टू प्रोडक्ट, राइट? स्टोकियोमेट्रिक यहाँ पे क्या है? 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -1/2 A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. तो A2 इधर क्या है हमारा? A2 इधर क्या है हमारा? 0.4 माइनस 0.5 A1 डिवाइडेड बाई, ये आपका होगा 10 में 10 माइनस 0 जो कि 10 आएगा, ठीक है. तो ये आएगा 0.1 आएगा, नेगेटिव में आएगा तो उसको प्लस कर देते हैं, राइट? तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ. -0.1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है. तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मिनट इनवर्स. मोल मतलब मोल्स पर लीटर, राइट? मिनट इनवर्स इस रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है. गॉट माय पॉइंट? एनी डाउट? ठीक है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. In a reaction 2A plus B gives rise to 3C. The concentration of A decreases from 0.5 mole liter inverse to 0.3 mole liter inverse in 10 minutes. The rate of production C during this period. Okay. प्रोडक्शन पूछा है, C का पूछा है. बहुत सिंपल और निकाल सकते हैं हम, ठीक है. कैसे निकाल रहा हूँ उसको ध्यान देना. डियर स्टूडेंट, मैं उसको इंपोर्टेंट दे रहा हूँ, इसको वेरी 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 इंपोर्टेंट दे रहा हूँ, इसको देख लेना एक बार, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. तो पहले लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस DA डिवाइडेड बाई DT, ठीक है. तो -1/2 DA जगह क्या लिखूँ मैं? A2 माइनस A1 T2 माइनस T1 लिखूँ. बात ठीक है? बोलो, यहाँ तो बात ठीक है. इक्वल टू -1/2 लिखूँ, क्योंकि यहाँ पे दिया है 2A दिया है, राइट? सो 1/2 लिख के 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख दो 10. बोलो, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा आई थिंक 0.5 से 0.3. अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं वैल्यू को. ओके, यस, यहाँ पर आएगा 0.5 से 0.3, ठीक है. डन. तो इक्वल टू ये आपका कितना आएगा? 0.2 इसको 1/2 करना भी नहीं चाहिए था, उसको काट देते हैं.
0.2 डिवाइडेड बाई 10। ओके, बात क्लियर है? ओके, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है मेरा भाई कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, राइट, वो पॉजिटिव में जाएगा। तो 0.2 डिवाइड बाई 10 कहते हैं मैंने, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.02, 0.02, बात ठीक है, 0.02 लिख सकता हूँ। देन फ्रॉम द इक्वेशन 2a प्लस बी गिव राइज टू 3c, राइट। मैंने यहाँ पे 2 क्यों काटा पता चला आपको? इसलिए काटा, मैं आपको यहाँ से निकाला था, ए का निकाला था, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम दिस वन इन 10 मिनट्स में डेल्टा ए निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को काट दिया। गड़ी में पॉइंट। तो अभी मैं क्या करूँगा, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा इस इक्वेशन का, तो अभी यहाँ पे 2 आ जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक इधर आ जाएगा, राइट। सो थोड़ा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँ माइनस डी कंसंट्रेशन ए डिवाइडेड बाई डी टी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लूँ 2 डी टी, 2 इंटू डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/3 डी सी बाई डी टी। बात सही है? मुझे सी चाहिए, तो सी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ए निकाल दिया था, अरे बोलो, मैंने ए निकाल दिया था। अभी मैं क्या करूँ, उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा। कैसे करूँगा ध्यान देना, राइट। तो यहाँ पे लिखूँ मैं डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 3/2, 3 इधर चला गया, राइट, 3/2 इंटू माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। बात सही है? और मैंने क्या किया, यहाँ से वो चीज़ निकाला हूँ, बस देख लीजिए आप, माइनस डी ए बाई डी टी का जो वैल्यू होता है वो होगा आपका 0.02 होगा। मैंने यहाँ पे निकाला हूँ, तो इसको तो हाईलाइट कर देता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बस देख लीजिए आप, ठीक है। ये वाला चीज़ यहाँ पर उसका वैल्यू है, ठीक है। माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 0.02 है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँ, उसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो अभी क्या लिखूंगा मैं, 3/2 इंटू 0.02, गट इट। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा 0.03, 0.03, ओके, 0.03। उसका यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स, और मैंने मिनट में लिया था, मिनट इनवर्स आएगा, ठीक। ये आपका डी सी बाई डी टी बन जाएगा। बात समझ में आया? इट्स द राइट आंसर। कैसे क्या पता चला पहले, उसको तो अब मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए, इसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक। तो मैंने पहले क्या किया, इन ए रिएक्शन 2a प्लस बी गिव राइज टू 3c, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.3 मोल लीटर इनवर्स इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी ड्यूरिंग दिस पीरियड, मुझे सी का प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था सी का। तो मैंने पहले क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ये लिखा ना, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखूँ मैं, माइनस डी अपन डी टी, क्योंकि जो डिक्रीज हुआ है तो रिएक्टेंट से हुआ है ना। यहाँ पे लिखा है 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.3 मोल लीटर इनवर्स, का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट में पहले 0.5 था, उसका 0.3 आया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, -8 टू -1 लिख सकता हूँ, बोलो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0.5 माइनस 0.3/10 किया, तो 0.2 इधर बाई 10 आएगा, तो 0.02 आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, नेगेटिव साइन को साइड में रख के इसको थोड़ा मैं सॉल्व करता हूँ। इसको मैं नेगेटिव साइन को हटा देता हूँ, तो आपको वो कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक। आई बात समझ में? तो जो माइनस डी अपन डी टी का जो वैल्यू है, मुझे यहाँ पे कितना मिल गया, मुझे मिला 0.02 मिला, ठीक है। उसके बाद मैं चला गया फ्रॉम द इक्वेशन में चला गया। इक्वेशन क्या बोल रहा है भाई, इक्वेशन ये बोल रहा है ना 2a प्लस बी गिव राइज टू 3c। तो इसका मैं क्या निकाला,
इंस्टेंटेनियस रेट निकाला माइनस डी अपन डी टी, जो स्टोकियोमेट्री मैंने डिवाइड किया इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1/3 डी सी बाई डी टी किया। तो मुझे पता है रेट बराबर होता है, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल साइन दिया तो इक्वल होगा ही होगा, राइट। मैंने दोनों को इक्वल किया, ठीक है, किस दोनों को इक्वल किया मैं इसको तो मेंशन कर देता हूँ। मैंने इस दोनों को इक्वल किया, एक ये दोनों को इक्वल क्यों किया, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, गड़ी में एक पॉइंट। तो उसको जैसे मैंने 3 इधर था, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 इंटू माइनस डी अपन डी टी, इसका वैल्यू मैं यहाँ से उठा के लेके आया 0.02, ठीक है। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया डी सी बाई डी टी इक्वल टू 0.03 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, गड़ी में पॉइंट। अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ सबका, कैसे क्या किया मैंने, नाइस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो फॉर द रिएक्शन 2A गिव राइज टू 3, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी अपन डी टी इज इक्वल टू, ओके फाइन। सो यहाँ पर 2A गिव राइज टू 3B होगा, ठीक है, बी लिख दिया मैंने, ठीक, यहाँ पर B, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंसर बनाते हैं। तो भाई -1/2 dA अपन डी टी बराबर 1/3 dB डिवाइडेड बाई डी टी, बात यहाँ तक क्लियर है। तो दैट इम्प्लाइज dA बाई डी टी इक्वल टू प्लस 2/3 dB बाई डी टी लिख सकता हूँ, बोलो, ठीक है। तो पूछा तो वो था, पूछा तो वो था माइनस डी ए बाई डी टी का इक्वल कितना होगा, इक्वल 2/3 dB बाई डी टी होगा। आई बात समझ में। सो डियर स्टूडेंट, इट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कैसे उसको सॉल्व करना है, राइट। सो इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, नहीं होगा तो आप आंसर को देख सकते हो। यदि कुछ डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप बोलोगे तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।